تیری میری کہانی ہے. بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے، ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر، دیکھتے رہیے صرف خبرنامہ ٹی وی پر. السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان. ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی ٹیلنٹڈ شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی خوبصورت زبان اور میٹھی زبان سرائیکی کے سنگر ہیں. رحیم بھٹی صاحب سے میری مراد ہے. سر سے آج بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کو شوق پیدا ہوا، کیا گاتے ہیں اور کیسے گاتے ہیں. بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. رحیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، آپ سنائیں. سٹارٹ سے تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کا بیک گراؤنڈ، تعلیمی بیک گراؤنڈ، کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور پھر کیسے شوق پیدا ہوا اس فیلڈ کے اندر؟ سر ہمارے گاؤں میں اسکول تھا، ادھر سے میں نے میٹرک حاصل کیا اور مجھے تقریباً بچپن سے ہی شوق تھا گلوکاری کا. تو بس کچھ مصروفیات اور ٹیلنٹڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ذرا اس کو کنٹینیو کرتے رہے ہیں. اور پھر میں گیا دبئی آج سے 3 سال پہلے. اچھا. ادھر ویسے ہم نے بیٹھک پروگرام کیا تو سب نے تعریف کی، سر آپ کی آواز پیاری ہے. پھر میں واپس آیا اور الحمدللہ سیکھنا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اسکول کے اندر جس طرح کوئی فنکشنز میں، ایونٹس میں آپ گاتے رہتے تھے؟ کافی گئے ہیں سر، کافی گئے ہیں. اسکول میں کبھی کبھار ریزلٹس ہوتے تھے، وہاں پر ہم نے کیا پروگرام. اور ہمارے سر تھے، بھائیوں کی طرح ہمارے سر تھے، ان کے گھر میں بھی بیٹھ کر ہم ویسے ہی شغل ملا کرتے تھے. ٹھیک ہے. باقی ابھی الحمدللہ سب کچھ سیکھا ہے اور ابھی آ رہے ہیں سانگ ہمارے بہت. ٹھیک ہے. بچپن سے شوق رکھا تھا کہ اس فیلڈ میں آنا ہے، سنگر بننا ہے، یا جیسے نارملی بچوں کے شوق ہوتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے؟ سر بچپن سے شوق تھا کہ میں نے سنگنگ کرنی ہے. لیکن ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں وہ اس چیز کو ذرا اوائڈ کرتے ہیں، بھائی یہ نہیں چیز اچھی. تو میں چھپ چھپا کر ذرا یہ ہے کہ کلاسز وغیرہ لیتا تھا. ابو کی ڈانٹ کھائی، اماں کی ڈانٹ کھائی، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہے سر. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہوتا ہے جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو فیملی کی طرف سے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، تو بالکل بہت. کس نے پھر سپورٹ کیا کہ یار بیٹا کرے آپ؟ سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والی میری والدہ ہے. ٹھیک. میری مدر ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں نکل جاتا تھا اسٹوڈیو وغیرہ میں، 1-2 دن ادھر رہتا تھا، بتاتا کہ کسی اور جگہ تھا اور جاتا اسٹوڈیو تھا. اچھا. بھائی والد صاحب کو نہ پتہ چلے. ٹھیک. اس وجہ سے پھر ابھی پتہ ان کو نہیں چلا کبھی بھی؟ نہیں، پتہ تو چلا ہے. ہمارے ماشاءاللہ جو فیملی ریلیٹیوز ہیں جو یہ چیز نہیں دیکھنا چاہتی، جو جلتے ہیں، وہ پھر یاری بات ہے یوٹیوب پر سانگ ریلیز ہوتا ہے، پھر وہ پاپا کو دکھا دیا، انہوں نے بڑا ڈانٹا وغیرہ. پھر مما نے بولا کہ اس کی اپنی زندگی ایسے جینے دو، تم نہ چھیڑو، تم نے اپنی جی لی، ابھی اس کی زندگی ایسے. کس کو فالو کرتے ہیں، کس سنگر کو سنتے ہیں، کس جیسا بننا چاہتے ہیں؟ میں سنتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں اور میرے الحمدللہ استاد محترم ہے رضوان وطا کھیلوی میاں والی سے. اچھا. استاد رضوان وطا کھیلوی میاں والی کے بہت ہی پیارے گلوکار ہیں، بہت سریلی آواز ہے ان کی. میں یقین کریں کہ تقریباً جب سے مجھے شوق پڑا ہے نا، ان کے گانے سنتے ہیں آج تک آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو کچھ طرح گنگنا کے ذرا ہمیں بتائیے گا ہماری ناظرین کو. سر ہم آپ کو گانا سناتے ہیں، ریا کا ایک پیار کا نغمہ ہے. ٹھیک ہے. ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے. زبردست جی، بہت زبردست. اچھا، ہم نے آپ کا یوٹیوب چینل بھی وزٹ کیا، آپ نے مختلف گانے ریلیز کیے. تو گانے لکھتے بھی آپ خود ہیں یا پھر لکھ کے کوئی؟ نہیں سر، گانے الحمدللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں نور طرح کھیلوی صاحب میاں والی سے، وہ مجھے گانے لکھ کر دے رہے ہیں. اور لیا شہر کے بہت ہی پیارے بھائی ہیں کمران شفیع صاحب ہے، وہ گانے مجھے لکھ کر دے رہے ہیں اس وقت. الحمدللہ بھی 3 سے 4 سانگ میرے ریکارڈ ہوئے ہیں. ان کی ویڈیو بھی الحمدللہ شوٹ ہم نے ملتان میں کی تھی، اور جلد ہی فوک سٹار میوزک پر آ رہے ہیں وہ سانگ. ٹھیک ہے. ویڈیوز ہم نے دیکھی، پراپر آپ نے کور اس کو کیا، باقاعدہ ساتھ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں لڑکے، پورا ایک اسٹوڈیو ٹائپ. تو یہ پروڈکشن میں جا کے آپ کرواتے ہیں یا اپنی ٹیم ہے؟ یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں فوک سٹار میوزک کے، سید جواد شاہ صاحب. یہ الحمدللہ پاکستان کے بہت ہی بڑے پروڈیوسر ہیں. ٹی پی گوڈ تھار پروڈکشن کے جو سانگ آتے ہیں وہ بھی وہی پروڈیوس کر رہے ہیں. ان کے پروڈکشن میں یہ سانگ ہم نے کیے ہیں. اور یہ جو ایکٹر ہو گئے، ماڈل ہو گئے جو اس گانے میں نا، وہ سب کچھ ان کی
जवाद शाह साहब की। ठीक है। अच्छा रहीम भाई ये बताइएगा कि अब आप क्योंकि गाने रिलीज़ भी कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, बड़ी शोहरत आपको मिल रही है, तो शुरू में जो लोग आपको तनकीद करते थे कि यार नहीं जाना है इस फील्ड में, ये वो, अब आपको देखते हैं तो क्या फीडबैक आता है? बस वही कहते हैं सर, आए हमारे पास बैठे, टाइम दें। अच्छा। जो कहते थे भाई ये काम अच्छा नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन ऐसा तशा, ही है। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली रब की ज़ात है, इंसान कुछ भी नहीं दे सकता किसी इंसान को। बाकी जो अच्छा नहीं फील करते थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सलाम करते हैं उठकर। अच्छा, तो ये बताइएगा अब आप फ्यूचर में क्या मज़ीद, अभी आप इसको सीख रहे हैं, आपने बताया कि 3-4 महीनों से हम क्लासेस ले रहे हैं बकायदा, और एक अलग केमिस्ट्री है इस चीज़ की। हमें तो बड़ा देखने में आसान लगता है कि बस गा लिया, लेकिन ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। सर ये एक समंदर है, इसकी गहराई नहीं है। ये बहुत गहराई वाली चीज़ है। अगर नॉर्मल आप सीखना चाहते हैं तो एक मंथ की बात है, अगर प्रॉपरली आप सीखना चाहते हैं, राग दरबारी, बिलावल ठाठ हो गया, बहुत सारे राग हैं, वो सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ टाइम मांगती है और प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है। कितना टाइम देते हैं दिन में? सर मैं तकरीबन दिन में कोई कम से कम 7 से 8 घंटे इसको देता हूँ। अच्छा। 7 से 8 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी हाथ वगैरह सब कुछ हमारा चल रहा है। अभी हम राग दरबारी ही कर रहे हैं, ठीक। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सराइकी का कोई गाना ज़रा अगर गा के आप बताएं तो। सराइकी का गाना सर कौन सा सुनना चाहते हैं आप? कोई भी, आप अपना, आपका फेवरेट जो सॉन्ग है मैं आपको अपना सुना देता हूँ, जो नया ही रिलीज़ हुआ है कुछ दिन 7 से 8 दिन पहले ना। अच्छा। जद्दा नखरे करे सी मेडा सोना, साड़ी गल ना मने सी मेडा सोना, तैयारी असा नहीं रखनी, ता प्यारे असा नहीं करना, तैयारी असा नहीं रखनी, ता प्यारे असा नहीं करना। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, गला भी आपका थोड़ा सा ख़राब है, देख रहे हम, कुछ तबीयत ख़राब है, क्या वजह है? तबीयत इस वजह से ख़राब है कि हम शूटिंग करने गए थे नए गाने की मरी में। अच्छा, मरी तो में। आपको पता है फिर वो बर्फ़ वगैरह और आगे पीछे, इस वजह से ज़रा तबीयत मेरा नॉर्मल है, ठीक। अभी थोड़ी सी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जब आपके घर में एक माहौल ना हो तो फिर चीज़ों को अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो अगर ये हो कि फैमिली अगर कर रही है किसी फील्ड में तो वो चीज़ें आसान होती है। आपकी फैमिली में कोई था इस फील्ड में पहले या? कोई भी नहीं था मेरी फैमिली में। मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भट्टी कौम से रिलेटिव्स हैं। हमारी फैमिली में आज तक किसी ने यकीन करें कि हाँ, सुनते बहुत सारे सिंग, मेरे वालिद साहब अताउल्लाह खान नियाज़ी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनके दोस्त हैं, मिले भी हैं काफ़ी सारे, उन्होंने प्रोग्राम, उनके शो लाइव भी देखे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ, क्योंकि ये वो कहते हैं ज़रा, और हमारे गांव की मिसाल है ना, ये काम अच्छा नहीं है, फलान के ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे शौक़ था और मैंने अपना शौक़ पूरा करना था। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह भी कर रहे हैं शौक़ अपना पूरा सर। ठीक है। अच्छा, अभी आप कुछ परफॉर्मेंसेस किसी मतलब स्टेज पे फंक्शन में जाके? जी सर, मैंने फंक्शन किया था ये चक्री, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मैंने किया उधर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शो रहा है हमारा। वो भी वीडियो हमारे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं तो वो भी यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको। ठीक है। अब क्या रहीम साहब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है मज़ीद इसकी केमिस्ट्री, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि कैसा आर्ट है, पूरा समंदर है, इसमें घुस जाए बंदा तो फिर इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो अब किस लाइन को आप अडॉप्ट करेंगे, कौन सी चीज़ें आप इस पे, जिस पे आप ग्रिप हासिल करना चाहते हैं? सर मैं अपने आप को इस फील्ड में ये है कि नाम अपना जितवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ रहा है, और मेरी जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि मैंने सिंगिंग करनी है और कुछ बनना है। ठीक, पता चले भाई यहाँ वाकई ये बंदा काम कर रहा है। इसके लिए मैंने चाहिए सर, हम अभी गाने में रिलीज़ कर रहा हूँ साथ साथ, भाई सामने था ज़रा सा आ जाए, लेकिन जब तक मुकम्मल हम इस चीज़ को सीख नहीं लेते तो मैं नहीं कहता कि आप गाना वगैरह अच्छा गा सकें ये वो, क्योंकि इसके बीच में रिदम के साथ चलना पड़ता है। हल्का सा रिदम टूट गया, फिर आपको पता है गाना तो रिलीज़ कर लेते हैं, सुनने वाले बहुत सारे होते हैं, गलतियाँ निकालने वाले, फिर वो अच्छा नहीं होता, फिर इस तरह आपकी शोहरत ख़राब होती है। ठीक है। इसके अलावा आपके साथ पूरी टीम है, रिकॉर्ड आप अपने स्टूडियो के अंदर ही करते हैं? जी सर, रिकॉर्ड मैंने कुछ गाने किए हैं खैबानी सर सैयद में, और कुछ गाने मुल्तान में किए हैं हैदरी स्टूडियो जैद साहब के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम बहुत अच्छा है। ठीक, बहुत ही अच्छा उनका काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी टीम है, तबले वाली है, फ्लूट वाली है, सब हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल, हमने आपका चैनल विज़िट किया, ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल चीज़ आप हमें दे रहे हैं। हमारी नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल पर जाएं, विज़िट करें, हमारे गाने सुनें, बस
नाजरीन की प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, और तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अल्लाह पाक। अच्छा रहीम साहब, नॉर्मली खुशियों के मौके पर, शादी के मौके पर इस तरह की चीज़ें लोग एंजॉय करते हैं, जी, सर, बैठते करते हैं, क्वाली नाइट्स होती हैं, बिल्कुल। तो अगर आपसे रब्ता करना हो तो फिर क्या प्रोसेस है उसका? सर अगर रब्ता करना हो तो ये हमारे चाचू जी हैं, ये आपको नंबर दे देते हैं, इनसे रब्ता करें, शो वगैरह की बुकिंग यही करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक दफ़ा कॉल करें, हम ज़रूर आएंगे, कोई मसला मसाइल नहीं है, तामन करेंगे भाइयों के साथ। ठीक, जी। तो सर आप भी बता दीजिएगा क्या प्रोसेस होगा, किस तरह कांटेक्ट करें आपसे, कोई नंबर वगैरह है तो? नंबर है ना जी 0308 52 9200। ठीक, इस नंबर पे आपसे कांटेक्ट करें और फिर बुकिंग वगैरह का प्रोसेस। इसके अलावा फेसबुक पे कोई पेज वगैरह कुछ इस तरह ऑनलाइन कोई बुकिंग का प्रोसेस भी है? जी जी जी, सब कुछ है। फेसबुक पर भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टर्स वगैरह आते हैं बुकिंग के। यूट्यूब चैनल के पैमलेट पर बैक पेज पर बैकग्राउंड पर वो भी लिखा हुआ है, मेरे नंबर भी उधर है सब। टिकटॉक, फेसबुक, अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम सब पर हमारा काम चल रहा है। हमारी टीम पूरी है जो फोक स्टार म्यूज़िक से ये बादशाह है, उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है। यूट्यूब पेज का भी हुआ है, तमाम गानों का भी हुआ है, किस तरह आने हैं, किस तरह रिलीज़ करने हैं, किस मौके पर रिलीज़ करने हैं। ठीक, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नए सॉन्ग आ रहे हैं। आप फोक स्टार पर जाएं, सुने और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक्स करें और हौसला अफजाई करें हमारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। रहीम भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी आज, क्योंकि ये शूट से वापस आए हैं तो तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन फोक स्टार पर आप इनके चैनल पर ज़रूर जाएं, विज़िट करें। हमने भी विज़िट की और फिर इनके पास आए। बड़ा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में ये सराइकी के और सराइकी के जो गाने पसंद करते हैं वो ज़रूर जो है वो विज़िट भी करें। और इसके अलावा जो तकरीबात के अंदर, क्वाली नाइट्स के अंदर इनको मतलब बुलाना चाहते हैं और इनकी आवाज़ से दिल फरेब होना चाहते हैं तो ज़रूर जो है वो इनको कांटेक्ट करें और इनसे रब्ता करें। और ये केमिस्ट्री है, ये एक आर्ट है और इसमें महारत ये रखते हैं और स्टिल ये सीख कर ये काम कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि ये मज़ीद इनको तरक्की मिले और मज़ीद ये इस काम को आगे बढ़ाएं। ख़बरनामा टीवी को फेसबुक पेज पे फॉलो और लाइक कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।